Yes, Atul ji. My practice was very good, and the thing happened. I wanted to share. Okay. Like a few years back, the company used to give us a gold coin in terms of tonnage and all. Hmm. So I had kept one 2 grams gold coin in my drawer. Hmm. So it was past from 4 5 years back. I have kept. Hmm. So every month or 15 days I used to कुछ ना कुछ करता था in my drawer में, but I never found it. Hmm. Today suddenly we thought of going to ISKCON temple, so I Hmm. took my membership card. Then I saw the gold coin suddenly. So you That was felt very happy? nice. Yeah. Yes, yes, I felt very happy. Okay. See, if you are happy, you have to show it. Yeah. It's like if you get a gift, you have to show it. If you give a gift Yes, to someone and that person is like, "Ah, theek hai, thank you," smiling cutely. No, that person has to show the excitement. Yes, I've got a gift. I want more gifts in my life. Okay. Yeah. Thank you, Atul ji. And keep doing the practices. Keep being grateful for money that we have received till date. And you'll keep on getting more and more money. Yeah. thank you, ma'am. Someone else wants to share? Hmm? No? Okay. So let's start with the warm-up and then we will start the reading. Okay. Please unmute yourself, switch on your cameras, and we'll just shake it, shake it. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 Ten little Fingers, 10 fingers, little 2 little toes, toes, 2 two little little one ears, little and fingers, ear, 1 2 little little nose. nose. 10 little 10 fingers, little 10 10 little fingers, little toes, 10 toes, little 10 toes, little 2 toes, little and 1 fingers, little and nose. 1 little Yes. nose. Excellent. So who wants to speak today? Can I? Yes, Survi, you can read. Yeah. Okay. So you have to take your name and tell us where you're from. Okay. So should I start? Yeah, Are, you have to tell me what's your name Yeah. and where you're from. My Yeah. name is myself Surbhi Pal. I'm from Mumbai, Maharashtra. Okay. Yes, very nice. So please start. Day 6 works like magic. So, Acha, tell me everyone, what do you mean by work? स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम तो कुछ काम नहीं करते हैं. आपको लगता है आप कुछ काम नहीं करते हैं? What is work? उनका पढ़ाई करना ही उनका काम है. हाँ, वेरी गुड. पढ़ाई करना ही उनका काम है. बट बाकी लोगों के लिए क्या? बट व्हाट इज वर्क? Job. Doing any act is a work. Yes, very good, Manoj ji. Any activity or anything that you're doing, okay, is work. हाँ, काम मतलब आप कुछ भी काम हो सकता है. आप पढ़ाई कर रहे हो, काम है. हाँ, आप घर पे कुछ मैनेजमेंट देख रहे हो तो भी काम है. घर में कुछ काम कर रहे हो वो भी काम है. ऑफिस में भी अगर आप मैनेजमेंट देख रहे हैं वो भी काम है. और एक जो फिजिकल काम भी कर रहा है जो इंसान, वो भी काम है. आप पढ़ा रहे हो वो भी एक काम है. सो एवरीथिंग दैट यू आर ऑक्यूपाइड इन, okay, is work. And today's topic is an amazing topic because it will ensure that whatever you are doing, okay, you get the results that you want or you get better results than you have thought of. तो अब हम लोग अगर ये फोटोग्राफ देखते हैं, ये एक ऑफिस की ही फोटोग्राफ है. या तो यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, सेलोटेप है, यहाँ पे फाइल्स रखे हुए हैं, पेन होल्डर है. और ऐसे देखिए ना, लाइन से लाइन लाइक देयर टेबल्स 1 2 3 और भी आगे होंगी. उसके पास भी पीसी है. सबके टेबल पे फाइल्स, रजिस्टर, सब कुछ रखा हुआ है. एंड देन नाउ ऑन दिस डायरी, अब देखिए इसी टेबल के ऊपर में ये जर्नल, डायरी, रजिस्टर जो भी बोलेंगे आपको रखा हुआ है. और ये लैंप से इसी पे मैजिकल डस्ट आ रही है. ठीक है, अब ये लैंप से आ रही है, क्या मैजिकल डस्ट ऑलरेडी थी और वो लाइट से दिख रही है हमको? दैट इज टोटली अप टू यू. यस, सो लेट्स रीड. Yes. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. How can it be that a person? You have to take the name of the, the person whose quote is this. Okay. Okay. Right. Writer. Yeah. So 1 second. So now Tom Robbins is telling us, if you take any activity,
इट कैन बी एनीथिंग, या एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल दैट यू हैव, माने आप उसको इतने शिद्दत से उसको करें, लाइक टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो। या तो अगर आप जैसे राखी भी बनाते हैं, आप सिंपल राखी बना रहे हैं, राइट, अब उनको राखी बनाना इतना अच्छा लग रहा है जो भी बना रहे हैं कि अब उन्होंने उसमें प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया। दे आर सेलिंग ऑनलाइन, दे आर people are coming to their house to buy rakis. They have employed 2-3 people to do this activity of making rakis professionally. आपने देखा है ऐसे लोगों को, है ना, आपको पता होगा, कहीं आपने उनसे राखी भी खरीदी होंगी। कोई भी आर्ट, ये एक छोटे जन का प्यार था उस एक्टिविटी के लिए, उस स्किल के लिए। या एनी आर्टिस्ट, हाँ, अगर आप MF हुसैन के बारे में बात करें, या कोई भी आप माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, पिकासो के बारे में बात करें, लोगों ने उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, नो, बट स्टिल दे जस्ट परस्यूड देयर आर्ट, एंड वो आज कहां से कहां पहुंच गए। दे पुश्ड इट टू द वाइल्डेस्ट एजेस ऑफ एजेस, मैंने आप सोचिए एज के भी एज तक उन्होंने उसको पुश किया। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन को देखें तो वो क्या करता है, सचिन तेंदुलकर क्लास 10 पढ़ा उन्होंने, हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट, बोलिए, किसी को बॉदर भी है कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नॉट बॉदर्ड। व्हाट ही डिड वाज ही जस्ट केप्ट आफ्टर हिज पैशन। वो छोटे से जो उन्होंने स्टार्ट किया, इट्स नॉट दैट कि वो हमारी तरह लेजी 9 बजे उठे, आंख खोल के क्रिकेट फील्ड पे पहुंच गए और खेल लिया और बस हो गया, नहीं, दे स्टार्ट देयर प्रैक्टिस एट 4। आप उनको छोड़िए, अभी जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने फॉरवर्ड भी आया था, मिस्टर चोपड़ा, उनके बारे में डिडंट ही प्रैक्टिस, डिड ही पुश्ड इट टू द फर्देस्ट लिमिट्स, टेल मी, सॉरी। तो कैसे कोई आदमी रियल्म ऑफ मैजिक में उसको ले जाता है, कैसे? अब इसको आप देखिए, ये क्यों कह रहे हैं रियल्म ऑफ मैजिक? मैजिक में क्या होता है, हमारे हिसाब से जो इम्पॉसिबल चीज होती है वो हो जाती है, तभी कोई तेंदुलकर बनता है, अगासी बनता है, जोकोविच बनता है। आप उसका नाम लीजिए, जिसने बस लेजी उठ के बिना उसको शिद्दत से फॉलो किए वो पहुंच गया खुद, उसमें उसने एक्सेल किया है। ऐसा कोई जन है? अगर कोई है भी तो बहुत मोमेंटरी वहां पे रहा होगा, अगर कोई है तो। सी देयर लॉट्स ऑफ पीपल, उन्होंने अपने पिछले जन्म में इतना ग्रैटिट्यूड किया होगा, अपने पेरेंट्स को इतना ग्रैटिट्यूड किया होगा, तो वो पहुंच गए होंगे। बट अगर उन्होंने उस एक्टिविटी को, अपनी उस स्किल को परस्यू नहीं किया, तो वो उसको उस रेल में नहीं ले जा सकते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टॉम रॉबिन्स इज टेलिंग अस। तो अगर आप देखिए, आप अपनी एक्टिविटी के बारे में क्या करते हैं, जो भी आपका काम है, आप उसके बारे में क्या बात करते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, राइट। ये पूरी बुक हम लोग को ग्रैटिट्यूड के बारे में बता रही है। अगर आप अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो कैसे आपको उस वाइल्डेस्ट एज के पार आपको मैजिक की दुनिया में लेके जाएगी। So this is what we are going to learn today. Yes. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. So अब आप देखिए, ये जब आप लाइन पढ़ रहे थे तो आपके मन में कौन कौन से लोग आ रहे थे? जब ये प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, आपके मन में कोई आ रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Barack Obama, अब्दुल कलाम आजाद, यस। और तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, राइट, हाउ ही स्टार्टेड एंड वेयर ही इज। सेलिब्रिटी की बात करें तो मेरे को लगता है इंडिया के तो कितने सारे सेलिब्रिटीज इसी टाइप के। आप अक्षय कुमार की बात करिए, रजनीकांत की बात करिए, सुनील शेट्टी की बात करिए, लाइक सो मेनी ऑफ देम, या इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एंड वो कहां से कहां पहुंच गए? जस्ट बिकॉज दे पुश्ड, kept on pushing, kept on pursuing their passion, their love. उनकी लाइफ जब आप सुनते हो तो आपको नहीं लगता है कि कितनी चैलेंजिंग है? अभी सब कुछ रोजी रोजी हमको दिखता है, बट व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, व्हाट दे हैव फेस्ड, हाउ दे केप्ट ऑन डूइंग व्हाट दे वांटेड टू, तब जाके उनको आज वो मिला है। एंड बिल्ड्स एन एम्पायर एंड बिकम्स वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड।
अब आप बताइए, ये धीरू भाई अंबानी की स्टोरी जैसी नहीं लग रही आपको कि वो कहाँ से स्टार्ट किए और क्या बन गए? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं. एंड हाउ इज इट दैट टू पीपल कैन स्टार्ट आउट इन द सेम करियर? ठीक है, वो दोनों सेम, सबको सेम. करियर की बात अगर हम लोग ऐसे ही करें, हम लोग सब अपने स्कूल के बात याद करते हैं. हमारे क्लास में 40 to 50 बच्चे होते हैं एवरेज. उसमें से कितने जन टॉप करके कहाँ पहुंच जाते हैं और बाकी क्या करते हैं? आपको लगता है नहीं नहीं वो लोग तो पढ़ाकू थे ना इसीलिए ऐसे हो गया? नहीं, सिर्फ पढ़ने वाले लोग नहीं एक्सेल करते हैं. जो लोग अपने आप को माने जिस चीज के पीछे वो पढ़ के करते हैं, लाइक करके इन द सेंस लाइक फॉलो करते हैं, वो ही जाके एक्सेल करते हैं, वो ही जाके शाइन करते हैं. क्या अगर हम लोग स्पोर्ट्स के इसमें देखें, आई हैव टोल्ड दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स बिकॉज दो आई एम नॉट अ वेरी I'm not passionate about sports too much. अब अगर हम काम्बली और तेंदुलकर को देखें, both of them were friends, started off same, उनके सेम कोच थे, बट कौन आगे निकला और कौन पीछे रह गया? या अब देखिए कैसे होता है ये, क्योंकि एक और वो लोग सेम ही मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट क्यों ऐसा? अब लोग नहीं, उसके स्टार्स ऐसे थे. स्टार्स थोड़े देर बात करते हैं, उसके बाद क्या काम करता है? आपका ग्रैटिट्यूड काम करता है, आपका पैशन काम करता है टुवर्ड्स योर एक्टिविटी, योर आर्ट और योर स्किल. ठीक है, तो ये रॉन्डा बर्न हमको बता रही है इन सब में जो मिसिंग लिंक थी या जो डिफरेंस था, इट वाज ओनली ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, towards what you are doing maximum part of the day, maximum time you are spending in your activity. तो जितना ज्यादा आप उस आर्ट में, उस स्किल में, अपने वर्क में ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड जब वो मोमेंटरी सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं, इट इज वेरी मोमेंटरी. शी इज टेलिंग अस विदाउट ग्रैटिट्यूड इट इज इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस. ठीक है, तो अगर आज लता मंगेशकर को आज सब जन जानते हैं, तेंदुलकर को सब जन जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सब जन जानते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ग्रैटिट्यूड. ओके, यस. अच्छा, अंबानी जी के जो दोनों बच्चे हैं, बच्चे मतलब अब तो वो भी काफी बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं. लुक एट द टू ब्रदर्स, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें भी डिफरेंस यही होगा, दोनों ने सेम पढ़ाई की, सेम ही मम्मी पापा थे दोनों के, फिर भी एक जन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और एक जन की स्टोरी अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग चल रही है उनकी लाइफ, है ना. तो उनमें भी ग्रैटिट्यूड है ही, ग्रैटिट्यूड का ही डिफरेंस है. आशमी मैम के सेशन में एक लेडी थी, वो मुकेश अंबानी जी के यहाँ पे उनके हस्बैंड कुछ काम करते थे. वो कहती थी उनके यहाँ पे जो भी फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, बोथ हस्बैंड वाइफ, मुकेश अंबानी जी एंड उनकी वाइफ, वो लोग लोगों को ग्रीट करते थे, उनको थैंक यू करते थे. उनके फैक्ट्री में, ऑफिस में जो भी काम करता था, उनको एक एक जन को पूरा एकदम ग्रैटिट्यूड, माने लाइक दे यूज्ड टू बी ग्रेटफुल फॉर देम. ये डिफरेंस था. वो उनके घर में अभी भी जो हमारे कल्चर की चीजें हैं वो सारी फॉलो हो रही हैं. सो दैट लेडी हैड शेयर्ड इन आश्विन मैम सेशन, सो आई नो ऑफ दैट, एंड आश्विन मैम भी बताती हैं. बट हम लोग को तो दिख भी रहा है कि कुछ तो एक डिफरेंस है. जो एक जन कुछ कर रहा है वो कहाँ से कहाँ बढ़ता ही चला जा रहा है आगे. ठीक है, एंड दूसरा जन अभी चैलेंजिंग सिचुएशंस में है. या सो प्लीज रीड. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Yeah. Whoever has just one second. अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ऐसे अब हमारे लाइफ में ही देखते हैं, आपके घर में मेड्स आती हैं, कोई स्टाफ होगा आपके घर में, अभी नहीं तो कभी जूनियर से आपने देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा. पहले हम लोग घर की बात करते हैं. अगर घर में एक मेड है, वो आपने जितना उसको बोला उसने उतना ही किया, ठीक है, और बस काम कर करके चली गई. एक दूसरी है जो आपने उसको बोला कुछ करने के लिए, सेम ही काम, और वो हाफ हार्टेडली कर रही है, पोछा भी कर रही है तो कोने कोने छोड़ दे रही है, नीचे नहीं कर रही है. माने अगर आप हो तो ठीक से कर रही है, अगर आप नहीं देख रहे हो तो ऐसे ही काम कर दे रही है, बस किसी तरह काम खत्म करके जल्दी से यहाँ भाग जाए. तो आपको अगर मौका मिलेगा तो आप किसको रखोगे और किसको टाटा कर दोगे? ऑफ कोर्स आपको कुछ घर में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, आप किसको गिफ्ट दोगे, किसको आप टिप्स दोगे, किसको दोगे? जो अच्छे से काम कर रहा है ऑफ कोर्स उसको ही.
या तो अगर आप बोलोगे नहीं मेरे ऑफिस में तो ऐसा नहीं है, मेरा बॉस बहुत पार्शियल है, मेरे को नहीं वो प्रमोट करता है, मेरे को कभी एक्स्ट्रा बोनस नहीं देता है, जल्दी छुट्टी नहीं देता है, इतना मेरे ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि ये काम करो, ओवर टाइम करो, दूसरे वाले जन को तो एकदम वो जल्दी चला जाता है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि वो बंदा अच्छे से पैशनेटली दिल लगा के अच्छे से काम कर रहा है। ये नहीं कि 6 बजे छुट्टी होती है वो 5:30 में बैग पैक करके रेडी हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल लाइक दैट। या आपके घर में भी होंगे कि घर में इन द सेंस लाइक स्टाफ, नॉट आई एम नॉट सेइंग योर फैमिली मेंबर्स, ओके। तो वो दिखता है। एक मेड है, अगर आपने उसको बोला कि तुमको ये काम है, उसने देखा घर में आपके गेस्ट आ गए हैं, वो अपने काम से एक्स्ट्रा काम अपने आप कर दे रही है, तो हाउ विल यू फील? यू विल फील हैप्पी, यू आर द बॉस, यू वुड वांट टू टिप हिम और हर, राइट? आपको मन करेगा ना उसको एक्स्ट्रा देने के लिए। तो ठीक वैसे ही अगर आप अपने जॉब पे, आप अपने काम पे, आप अपनी एक्टिविटी में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, मतलब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, मतलब आप अपने उस चीज की वैल्यू कर रहे हैं। क्यों होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो रिसर्च करता है, वो अच्छे से अच्छा और उस टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। हम लोग क्या करते हैं, मैम ने पढ़ा दिया, बस बुक बंद करके आ गए, एग्जाम के पहले पढ़ लिया और जाके लिखा है, तो हमारे कैसे मार्क्स आते हैं? चल भी शुड बी कंप्लेन, मैम की तो वो फेवरेट है। हम लोग ऐसे ही तो बोलते थे ना, मैम की वो फेवरेट है, पढ़ाकू बच्ची, जब देखो पढ़ती रहती है, तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? इट्स अ फैक्ट। वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रही है, वो ग्रेटफुल है कि उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल भेजा, उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। शी इज अ जिज्ञासु काइंड ऑफ अ पर्सन, जिज्ञासु लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, शी वांट्स टू रिसर्च एंड एक्सेल इन दैट। आप देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को परस्यू करते हो, आप उसी को फॉलो करते हो, और बाकी चीजों के लिए आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आपके लाइफ में उसके रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं। तो नाउ Rhonda Byrne is telling us that if you are grateful, okay, and if you are doing whatever activity you are doing with passion, with gratitude, what will happen? अब आप देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, ब्रिलियंट आइडियाज, इंस्पिरेशंस, अप्रिसिएशन, दे डोंट कम बाय फ्लूक, they come to you because you have been pushing it to the wildest edges of edges, okay? So अब आप देखिए, आप लोग नहीं, मैं तो घर पे हूँ, मुझे कहाँ से ये सब आइडिया आएंगे? आप देखो, अगर आप घर पे अनग्रेटफुल हो रहे हैं तो क्या होता है? आपका फ्रिज खराब होता है, आपकी मेड जल्दी भाग जाती है, बार बार चेंज होती रहती है, आपके घर में सामान आता है तो आपको लगता है कि नहीं दूसरे का सामान ज्यादा अच्छा आ रहा है, आपके घर में सामान कम आ रहा है। ये सब क्या होता है? ये तभी होता है जब आप अनग्रेटफुल हो रहे होते हैं, ठीक है? एंड ये तो हम लोग समझ गए ना कि इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल, हमारे पास जो है वो हमसे ले लिया जाएगा, एंड वी विल सी इट, ठीक है? सो लेट्स रीड। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. You have to read this. Sorry, you have to read this also for their work. Okay. Yeah. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. Yeah, so same thing applies in this. If you are ungrateful in your job, ठीक है, आपका प्रमोशन कम होगा, आपको क्या बोलते हैं, बोनस कम मिलेगा, आपको ज्यादा काम मिल जाएगा, ठीक है? बॉस के पास 2 टिकट होंगे घूमने के लिए, तो वो आपको नहीं देगा, आपके कलीग को दे देगा, बिकॉज वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सब तभी होएगा जब आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। अगर अभी हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हर एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इट इज नॉट जस्ट योर जॉब, it is your activity, it is your work that you're doing the whole day. Yeah. Easy. When you're grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. तो आपने देखा होगा, अगर हम लोग उसी मेड की बात करते हैं, ठीक है, वो आपके घर में गेस्ट आए हैं, वो एक्स्ट्रा अपने आप रुक के आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है? अगर उसने देखा कि उसके स्कोप में सिर्फ डस्टिंग का काम है, लेकिन उसने देखा कि आपके कपड़े भी इधर उधर रखे हुए हैं और आप थोड़े से थके हुए दिख रहे हो, तो वो आपका एक्स्ट्रा काम खुद ही कर देगी। तो वो क्या कर रही है? शी इज गिविंग मोर टू हर वर्क। सो आर यू डूइंग दिस इन योर जॉब?
अगर आप जॉब पे हो, अगर आप अपने बिजनेस पे हो, तो क्या आप वो एक्स्ट्रा कर रहे हो? हाँ, ये आप देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे होंगे, आपके बॉस आपको प्रमोशन ज्यादा दे रहा होगा, थोड़ा सा ये लॉकडाउन के बाद भी आपकी सैलरी रेगुलरली आ रही होगी, राइट? आपके बिजनेस में फिर भी क्लाइंट्स बढ़ते चले जा रहे होंगे। आपके घर में अगर आप माने सब ना, घर की लक्ष्मी फिर प्रॉपरली आप ही हैं, अगर आप घर में भी ठीक से देख अपना काम कर रहे हैं, काम इन द सेंस लाइक मैनेजमेंट हैप्पीली कर रहे हैं, इन लॉस की टेक केयर, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू आर डूइंग इट मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू, ठीक है? आप बोलोगे नहीं नहीं, हाउसवाइफ तो ऐसे ही जो मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू डू करती है, बट आप क्या उसको ग्रेटफुल होके कर रहे हो? सो इफ यू आर डूइंग दैट, इट विल शो इन योर लाइफ। Okay, so this is what Rhonda Byrne is telling us, that whatever you are doing, if you are giving it more than is expected from you, if you are doing it with gratitude, it will bring magic in your life. अभी तक आपने वो मैजिक आपको लगता ही नहीं होगा, बट वो मैजिक ही होंगे। आपकी मेड्स हमेशा से होंगी, आपको सामान अच्छे से मिल जाता है, आपको सब्जियों में भी डिस्काउंट मिल जाता है, फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, यू नो, ये भी बहुत होता है। सब्जी आई घर में, आपने देखा एक टमाटर सड़ा हुआ उसके अंदर, ये कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं तो आप अनग्रेटफुल हुए होंगे, ठीक है? इसीलिए होता है ये। नथिंग हैपेंस बाय चांस, नथिंग, ठीक है? आज आप जो सब लोग यहाँ पे हैं, इट इज नॉट बाय चांस, कुछ ना कुछ भगवान जी ने देखा कि आपकी लाइफ में मैजिक आने का टाइम आ गया है। दैट इज व्हाई ऑल ऑफ अस आर हियर, एंड आई मीन ऑल ऑफ अस, लाइक इंक्लूडिंग मी, ठीक है? हम अपने जॉब के लिए बताते हैं, कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा था कि मेरा काम हमेशा चलता रहता है, क्या? मैंने इंटीरियर डिजाइनर, सो माय प्रोजेक्ट्स, यू नो, एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, सो आई डोंट हैव अ फिक्स्ड जॉब, या फिक्स्ड इनकम एज सच मेरी नहीं है, सो आई एम वर्किंग यू नो जॉब बेसिस, लाइक प्रोजेक्ट बेसिस। तो मेरी फ्रेंड्स हमको पूछती थी, प्रिया तुम्हारी साइट चल रही है? मैंने बोला हाँ। बोले अब जब खत्म हो जाएगी तो? हमने बोला टचवुड आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी एक साइट खत्म हो गई हो एंड आई एम सिटिंग आइडल। मेरी एक खत्म होती है और दूसरी अपने आप स्टार्ट होने के, लाइक यू नो, आई विल बी डूइंग ड्राइंग्स, एंड दूसरी स्टार्ट हो जाती है। माने मेरे पास एक हफ्ते का भी बीच में ऐसे नहीं ब्रेक बोल के नहीं होता है कि हाँ ये खत्म हो गई अब हम चिल कर रहे हैं ऑफिस में या घर पे चिल कर रहे हैं और टेंशन कर रहे हैं, नहीं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। आई बीन वर्किंग ऑन माय ओन फॉर द पास्ट 3 इयर्स, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। एंड हमको पता नहीं था, बट कहीं ना कहीं हमने ऐसा मैनिफेस्ट करके रखा था। कोई हमसे पूछता था, हम यही बोलते थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा सा रॉन्ग फ्रेजिंग थी क्योंकि तब आता नहीं था ना। हमने बोला नहीं, मेरे पास हमेशा काम रहता है, कभी मेरे खाली नहीं रहते हैं। लाइक ये नहीं बोलना चाहिए था, तब पता नहीं था, बट आई यूज्ड टू से आई ऑलवेज गेट माय जॉब, कि आई ऑलवेज कीप डूइंग प्रोजेक्ट्स। ये भी नहीं कि 1 2 3 4 अरे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर गिविंग मोर टू योर वर्क, ओके, इट विल कीप गिविंग मोर टू यू। तो ये आप देखिए आपके लाइफ में कैसे हो रहा है। अगर आपको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जा रहे हैं, क्या आपने यहाँ से स्टार्ट किया, एंड शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो बटरिंग यू, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप अपने आप खुद जॉब को अपने ज्यादा से ज्यादा दे रहे होगे, इट विल कम टू यू नेचुरली। बॉस ने कहा है ये लिखो, आपको लगेगा नहीं ऐसा करने से और अच्छा हो जाएगा, तो इट विल कम टू यू। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर ली नहीं, आप ट्यूशन पे भी अच्छे से काम करिए। ये नहीं कि सिर्फ पापा ने बोला है जाओ ट्यूशन भी करके आओ आप उसके चले गए, नहीं, आप उसमें भी अच्छे से ही पढ़ रहे हो, घर में आके भी कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई, मैम की रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, स्कूल की रिस्पेक्ट भी कर रहे हो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग रिस्पेक्ट, इट इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, ठीक है? इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, इट विल गिव यू दैट रिटर्न्स। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होएगा कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका फल नहीं मिला। एंड मेहनत मीन्स लाइक ग्रेटिट्यूड कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स, डिजायर्स एंड पैशंस। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. Yeah, so the amount of it is directly proportional. अब हम लोग अब आज से आप देखिएगा हमारे सेशन में मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है? तो अभी फर्स्ट ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू गिव। माने जो आपको मिलेगा इज लाइक व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। सो हु कंट्रोल्स द amount we receive? You. It's like I control the amount of projects that I get, I control the promotion that I'm getting, I control the bonus that I'm getting, I control you know the help I have in my house, like I am controlling that. अच्छा, अब हम लोग बात ही कर रहे हैं वर्क की, लेकिन हर चीज आपके लाइफ में ऐसे ही चलती है। इट इज योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल्स, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग वर्क्स इन दिस रेशियो। हम लोग एक एक चैप्टर को ऐसे एक एक एरिया में यूज कर रहे हैं, बट ये पूरा पैराग्राफ में उन्होंने ये नहीं बोला कि ये वर्क के बारे में। आप देखिए, द अमाउंट यू गिव इन ग्रेटिट्यूड, अमाउंट
is exactly proportional to the amount you receive in return. In which area? It could be your financials, health, relationship, work, anything and everything. ये इसी तरह काम करता है, ठीक है? So you control. If you are giving that much gratitude, you will definitely get that amount back. Yeah, please read. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. या तो अब हम लोग बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने बहुत चिंता की, ठीक है, बहुत चिंता की, अरे पता नहीं क्या होगा, बिजनेस तो डूब रहा है, सारे लॉकडाउन में सबका पैसा अटका हुआ है, यू नो, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या लग रही हैं? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड नहीं लग रही। अगर आपने ऐसा बोला है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, और जिन्होंने ऐसा नहीं बोला उन्होंने लॉकडाउन में भी न्यू बिजनेस कर लिए, राइट? कितने लोगों ने कितने अर्न कर लिए, पीपी किट ये वो कर करके, यू नो, कितने सारे उन्होंने न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर लिए। अगर आप बोलते नहीं ये तो फैक्ट है, करना तो था ही, बट उसमें भी आप कुछ और ग्रैटिट्यूड होने की चीजें ढूंढ लेते तो आज हमारी, यू नो, बिजनेस डिफरेंट टाइप की हो जाती है, डिफरेंट टाइप का हमारा वो हो जाता है। आप अगर नॉर्मल कोर्स में अगर आप बोल रहे हो नहीं धंधा तो मंदा है, अभी क्या होता है, हम लोग ना, हमारी कंट्री में ऐसा है कि हम लोग अगर अच्छी बातें बोलेंगे तो उसको नजर लग जाएगी। How many of you feel that? ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में आप देखिए रोंडा बर्न हमसे ठीक क्या कह रही है, हमको ऐसा नहीं बोलना है। आपको अगर बोलता है नहीं लग सकती नजर, तो आप सीधे बोलिए भगवान की इच्छा, आप ये बोल सकते हैं ना। हाँ? कोई भी आपसे कुछ पूछे एंड यू फील यू डोंट वांट टू शेयर, तो आप कुछ, हम लोग जनरली उसका उल्टा बोल देते हैं, क्या बताएं, ये तो बदमाश है, वो भी बदमाश है, ये भी है, बनने के लिए सारा आप ही के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। दिस इज हाउ वी डू। तो अगर आज से आपको ये करना है, ऐसे एकदम भी नहीं बोलना है। आपको अगर कुछ अपनी अच्छी चीजें शेयर नहीं करनी है, जैसे भगवान की इच्छा, गॉड्स ब्लेसिंग्स, उतना ही बोलो। अब वो उसके ऊपर है, वो अच्छा सोचे कि गंदा सोचे, है ना, इतना अपन कर सकते हैं। सो डू दैट, अदरवाइज ऑलवेज ऑलवेज टॉक पॉजिटिव, ऑलवेज। हाँ, अगर आपने कहा धंधा मंदा चल रहा है, मार्केट ही डाउन है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, हाँ, एकदम लीन सीजन चल रहा है, अगर आप इस टाइप की बातें अपने बिजनेस के बारे में करते हैं तो उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। यू आर अट्रैक्टिंग इट टू योरसेल्फ। ओके, हमने पढ़ा ना, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आप अगर बोल रहे हो कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो मतलब कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, एग्जाम से वही क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप बिजनेस में देखिए, आप कस्टमर के बारे में बोले, बताओ फिर से आ गया, हाँ, इतनी बातें पूछेगा और खरीदेगा 2 रुपए का, यू नो, वी टॉक अबाउट दैट। इतनी रिसर्च करा ली, कुछ खरीदा नहीं, कस्टमर तो होते ही, जितना दे दो उनको तो और ही चाहिए रहता है। अगर आप अपने कस्टमर के बारे में ऐसा बात करो, आप अपने एम्प्लॉय के बारे में बात करो कि ये सब तो होते ही निकम्मे हैं, हाँ, सब लोग को लगता है कि, यू नो, आई डोंट नो आप किस टाइप की बात, वी हैव सीन इट इन मूवीज, जनरली वहीं से आ रहा है, और तो ऐसे नॉर्मल में तो आई हैव नॉट हर्ड पीपल स्पीक लाइक दिस, बट इन मूवीज वी हैव सीन इट। या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कोई एल्डर जन को या किसी क्लाइंट को, किसी से आपने सुना होगा, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग बैड अबाउट योर बिजनेस, यू आर टॉकिंग बैड अबाउट योर वर्क, ठीक है। और हमारे कंट्री में बोला जाता है ना, काम पूजा है, पूजा मतलब ये वाली पूजा, राइट, नॉट सम गर्ल। तो काम ही जब पूजा है तो उसके बारे में आप क्यों नेगेटिव बोल रहे हो? काम के बीच में अगर आप कुछ भी और कर रहे हो, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है। कुछ भी और मतलब लाइक, ये हम नहीं कह रहे कि एकदम ही स्ट्रिक्ट 9 to 5 आप एकदम फोन भी मत देखो, काम करते रहो, बट एक वो होता है ना, इट्स लाइक सम पीपल व्हेन दे गो फॉर लंच, वो 1 या 1.5 घंटा भी लंच के बाद आएंगे। सो व्हाई आर यू बीइंग ग्रेटफुल? यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, देन द यूनिवर्स इज सीइंग, आपको उसका रिटर्न भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो जब आप अपने काम को अपना 100% देंगे, पावर बुक में लिखा है 100% नहीं देना होता है, आपको 100 से भी ज्यादा देना होता है, कि जो आपको देना है। हम लोग को हमेशा लगता है ना कि ठीक तो दे दिया है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो हमेशा कम होता है। देना इन द सेंस लाइक व्हाट यू आर पुटिंग इनटू इट। तो इफ यू आर गिविंग मोर देन 100%, तो अगर उसकी वैल्यू देखी जाएगी तो वो एक्चुअल में 100 होगी या मे बी 95, 99 होगी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, गिव इट योर बेस्ट शॉट। सो इफ यू आर गिविंग इट योर बेस्ट शॉट, यू विल डेफिनेटली गेट दैट डन। If you're a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life.
It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes. ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो पेरेंट हो, ओके, आप जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आपको देखिए यू हैव गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट, ऑफ गिविंग सच वैल्यूज, ओके, टू योर चाइल्ड। आप बताइए, आप जो उसको सिखाओगे वो वैसा इंसान बन रहा है, ठीक है, उसके लाइफ में वैसी चीजें आएंगी। तो यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड, यू नो दैट यू कैन मोल्ड समवन्स लाइफ, यू कैन मोल्ड समवन्स बिलीफ, कि उनके लाइफ में क्या आ रहा है वो आपके हाथ में। सो इफ यू टेक दैट एज अ यू नो ब्लेसिंग, आप डिफरेंटली बिहेव करोगे। अगर नहीं, आप बोलो नहीं मेरा तो बच्चा बहुत बदमाश है, सबके मन में ये बात आ रही होगी, ठीक है, आप बदमाश नहीं थे छोटे में, कितने बदमाश थे आप लोग, नहीं आज के बच्चे तो अलग लेवल के बदमाश होते हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को पता चल रहा है बिकॉज ऑफ माय नीस, बट फिर भी वो जब आके एक बच्चा हग करता है, हाउ आई तो फील लाइक, यू नो, मैं तो दिल गदगद हो जाता है ना। लाइक आजकल माय नीस हैज बिकम 3.5 और आज वो राधा की तरह ड्रेस पहनी हुई और डांस करी हुई, आपने देखा है व्हेन शी इज ड्रेस्ड अप इन अ लहंगा एंड ऑल, ओके, घाघरा, वो थोड़ी सी ना सिंपल हो जाती है, सिंपल मतलब थोड़ी सी शांत हो जाती है एज कम्पेयर टू कृष्णा एंड हनुमान रूप, ओके, तो वो एक अलग टाइप की एक फीलिंग आती है। तो एंड आई सी हर, of course, her different kind of a connection with her mom and dad. So you are blessed to have that when you have kids, and when they grow up you are always their friend, you are always the first person they'll come to. तो आप सोचो ना, ये this is what she's saying ना, more beautiful moments, more happiness to the experience. तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। your friendship, your relationship with your kids, your parents, your in-laws will be different if you take, you know, this work, जो आपका वर्क है, जो आप बोलते हो ना हाउसवाइफ का जो वर्क है, हाँ, इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। एंड हमने जब से ये मैजिक बुक की है, माय रिलेशनशिप विद माय मॉम हैज बिकम अमेजिंग। पहले मेरे को हम बताते हैं, लाइक आई हैव शेयर्ड इन अदर सेशंस आल्सो, पहले क्या होता था, मेरी फ्रेंड्स अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात करती थी, हमको तो मेरी तो मम्मी ऐसी है, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, हम बोले मेरी तो मम्मा ऐसी है, तुम लोग तो मदर इन लॉ, सोचो कितनी स्ट्रिक्ट है मेरी मॉम, ठीक है। तो हमने देखा हम क्या कर रहे थे, I was manifesting that my mom is becoming, you know, my mom is like that. So she's very disciplined and she expects that from me. तो वो क्यों चाहती हैं सब? So that I become better. But उस समय तो नहीं समझ में आता था। जब से ये मैजिक बुक की है, अब वो जो करती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरा रिलेशन उनके संग अमेजिंग हो गया, ठीक है। तो अब वो लाइक इट विल टेक योर रिलेशनशिप विद पीपल टू अ डिफरेंट लेवल। आपको लग रहा होगा अभी तो हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजों के बारे में ही किया है, जैसे जैसे बुक आगे बढ़ेगी इट विल कवर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, क्या अच्छा है क्या गंदा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग इट विल कवर एंड इट विल कीप ऑन क्रिएटिंग मैजिक्स इन योर लाइफ। तो कल का जो प्रैक्टिस है इट इज गोइंग टू यू नो बी राइट फ्रॉम द मॉर्निंग यू गेट अप एंड मैजिक रॉक तो लास्ट में हम लोग को करना ही है। सो द होल डे इट इज अबाउट एवरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग टुमारो, ओके। सो लेट्स रीड, बिकॉज एक्चुअल में आप जो कर रहे हो अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो आपके लाइफ में अलग ही एक मैजिक होएगा। प्लीज रीड। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. तो आप जो भी कर रहे हो आपको उसको जब तक आप प्यार नहीं दोगे, अगर आप अभी मे बी एक माय टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो और आपको काम करना है गूगल में, ठीक है, अगर आप इस माय टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपना पूरा नहीं दोगे, तन मन धन टाइप्स, यू नो, लाइक यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू योर जॉब, आपको गूगल क्या आपको उससे भी अच्छे में मिलेगा, ठीक है, इफ यू आर गिविंग इट योर बेस्ट शॉट। अगर आपका ये घर है, हाँ, आपका 2 बेडरूम फ्लैट है या 1 बेडरूम फ्लैट है, जैसा भी है, एंड आपको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, रूम कितना छोटा है, बाथरूम कितना छोटा है, 2 ही वार्डरोब है, मेरे तो कपड़े ही नहीं अटते हैं उसके अंदर, बच्चों के लिए स्पेस नहीं है, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपसे दूर होता जाएगा, ठीक है, या ड्रीम हाउस है वो आपसे दूर होता जाएगा। सो व्हाटएवर यू हैव, if you start giving love to it, if you start being grateful for it, ठीक है, वो आपका जो ड्रीम जॉब है उससे अच्छा आपको मिलेगा, वो जो ड्रीम हाउस है उससे अच्छा आपको मिलेगा। सो Rhonda Byrne is telling us that whatever you are doing tomorrow, whatever you are doing from tomorrow, you have to give it your best shot, take it to the magical realm, okay।
Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So, at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. या तो अब हमको देखना है कि हम पहले से तो जो इतना पूरा दिन जो काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं, आप स्टोरी बुक भी पढ़ते हो तो भी वो आपका वो काम है, आप टीवी भी देख रहे हो तो भी वो आपका काम है, राइट? आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसमें, ठीक है, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपके उस एफर्ट का, आपके उस काम का एक अलग ही रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो कल आपको इमेजिन करना है आपके संग एक इनविजिबल मैनेजर है, माने आपके पीछे पीछे मैनेजर है, आपका एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, आप पे आंख रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपको क्या करना है, आप सुबह से उठे, आप अगर जॉब पे जा रहे हो या वर्क फ्रॉम होम है या आपका बिजनेस है या आप घर पे ही हो, आप सुबह से उठ के जो भी कुछ कर रहे हैं आपके पीछे पीछे वो चल रहा है, आपके पीछे पूरा टाइम पूरा दिन है। आपको करना क्या है, इट्स लाइक यू गेट अप, आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी एंड आपने देखा थैंक यू फॉर द पेन, मैनेजर को बोल दिया राइट इट, आई एम थैंकफुल फॉर द पेन, वो अपना लिखता जा रहा है। यू डोंट हैव टू राइट, लाइक ब्लेसिंग्स तो आपको लिखनी है बट आपके मन में जिस चीज को देख के थैंक यू आ रहा है, इट्स लाइक व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड मन में उस मैनेजर को बोलना है और वो लिखेगा, ठीक है? इट्स लाइक व्हेन आई गेट अप, आई गेट रेडी एंड देन गो टू ऑफिस। तो अगर हम तैयार होने जा रहे हैं तो आई से यू नो थैंक यू, मेरे वॉशरूम में टैप है उसके लिए कि आई विल गेट रेडी, अदरवाइज वो टैप नहीं होता तो पानी कहाँ से आता मेरे को, यू नो पता नहीं कहाँ से पानी लाके तैयार होके कैसे जाते हैं हम ऑफिस। या फॉर माई लैपटॉप, थैंक यू फॉर माई लैपटॉप, थैंक यू फॉर माई ऑफिस, थैंक यू फॉर माई प्रिंटर, थैंक यू फॉर माई ड्राइवर, माई कार, माने पूरा टाइम जो जो चीज मेरे काम से रिलेटेड है हम उस मैनेजर को बोलते जाएंगे, ठीक है? एंड मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना, अदरवाइज ज्यादा पीपल विल थिंक गॉन बॉन्कर्स, ठीक है? तो आपको मन में पूरे टाइम उसको बोलते रहना है कि लिखो आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो आपके मन में, तुलसी ने शेयर किया था ना, मन में थैंक यू की माला चलती है, वो यही माला है कि आप उस मैनेजर को सब लिखा रहे हैं कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, ठीक है? तो आपको कल से यही करना है। आपने यू नो थैंक यू फॉर योर बैग, प्रिंटर, आपकी रिसेप्शनिस्ट है ऑफिस में, या आप घर पे ही हो अगर तो आप सोचो आप किचन में गए, ठीक है, या आप वॉशिंग मशीन के पास गए, तो जो जो चीजें आपके काम की हैं, ठीक है, उन हर चीज के लिए आप थैंकफुल बोल रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो और वो मैनेजर लिखता जा रहा है। तो जितनी ज्यादा चीजें आपने थैंक यू बोली है उस अपने मैनेजर से लिखवाई हैं, उतना ज्यादा आपके लाइफ में इट विल ब्रिंग मनी टू योर यू नो एरिया, सॉरी इट विल ब्रिंग मनी टू यू, इट विल ब्रिंग सक्सेस टू यू, अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट, माने हर चीज आपको उस काम में आपको मिलने वाली है, ठीक है? हो सकता है आप घर पे हो एंड आपने अपना सब खाना वाना मैनेज कर लिया, मे बी यू नो आपके लिए घर में हस्बैंड आपके लिए कोई एक्स्ट्रा स्वीट से आया या वाइफ ने कुछ एक्स्ट्रा मिठाई आपके लिए बना दी, एक्स्ट्रा डिश बना दी, यू हैव कम बैक फ्रॉम वर्क, या ऐसा हो सकता है जॉब में आज आपको जल्दी छुट्टी मिल जाए, जस्ट सी कैसे होता है, आपको यू नो यू गेट अ गिफ्ट इन द ऑफिस, कोई स्पेशल प्रमोशन हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैजिक। आप जो सोचते भी नहीं हो ना उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है? तो कल आपको यही करना है और वो नोट्स बना रहा है। सम पीपल माइट से कि हमको लिखना है, नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मन में सोचते रहना है कि किस किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, ठीक है? जैसे आप किचन में गए, यू कैन बी थैंकफुल फॉर द बर्नर, फॉर द मिक्सर, फॉर द फ्रिज, ठीक है? अब बोलोगे नहीं आ रहा है ग्रैटिट्यूड, कैसे आएगा? तो जब ऐसा आए ना मन में कि कैसे आएगा ग्रैटिट्यूड, तो आप उस चीज के बिना अपने लाइफ सोचना। अगर आप घर पे हो, कैन यू थिंक ऑफ योर लाइफ यू नो विदाउट अ फ्रिज? आज के सिनेरियो में जहां नहीं है तो वहां नहीं है, वो अलग बात है। लाइक इफ आई हैव गॉन टू अ प्लेस वहां पे फ्रिज है नहीं या वहां पे जरूरत नहीं है फ्रिज की, वो अलग बात है। बट कैन यू इमेजिन विदाउट अ बर्नर, स्टोव पे खाना बनाओगे, चूल्हे पे खाना बनाओगे, कैसे बनेगा खाना, ठीक है? आप नहीं बना रहे हो, कुक भी बना रही हो तो भी आप कुक के लिए थैंकफुल हो, स्वीपर के लिए थैंकफुल हो, ठीक है? आपके बाथरूम के लिए आप थैंकफुल हो, माने जो चीज आप यूज कर रहे हैं, आप पानी की बॉटल के लिए भी थैंक यू हो, राइट? सो यू आर थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यू आर थैंकफुल फॉर द ग्लास,
हाँ, आप ऑफिस जा रहे हो तो आप तैयार हो रहे हो उसके लिए, आप घर पे हो तो आप नहाने गए हो अपने बाथरूम के लिए, हर एक चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है. So it is not just about your work, it is about everything that you are using and doing tomorrow. Okay? Yes. Easy. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. या तो आप देखिए, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं उन सब के बारे में, अगर आपको आज एक रेसिपी भी देखनी है घर पे, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे देखते हैं. आपको इंटरनेट चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप हर चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं. आपने हेडसेट यूज कर रहे हैं, हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जूम सेशन है, फिर भी इन सब चीज के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं. ठीक है, आप सोचो ना, आप टैली यूज करते हो या जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने काम के लिए यूज करते हो, अगर वो नहीं होता तो कैसे आप काम करते? टेल मी. आई एम टू टेलिंग यू, जिस दिन से ये हमने समझा ना, आई एम लाइक सो थैंकफुल कि ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं ड्राइंग करने के लिए. अदरवाइज तो ना ड्राइंग चेंज करते करते डिफरेंट ही लाइफ होती. ठीक है, आप जो पहले, आपको याद है कार्बन पेपर रख के फिर ऊपर कॉपी बनाने के कैसे होता था? आजकल कोई करता है ऐसा? करते हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं करते हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हो वैसी लाइफ कि अगर आपको भी वही सब करना है कि एक एरर हो गया वर्ड में, हाँ, आपको अगर आपने वो नहीं, अपना डॉक्यूमेंट आप उस पर नहीं टाइप कर रहे होते तो आपको कितना वो चिट्ठी लिखना. रिमेम्बर हम लोगों ने स्कूल में लेटर राइटिंग सीखी थी, फिर वो गड़बड़ हो जाती थी. हाँ? वो टाइपराइटर आया और उससे आज जब ये जो लैपटॉप एंड प्रिंटर्स आ गए, लाइफ कितनी अच्छी हो गई है. आपने कभी सोचा कि इतना अच्छा टाइम आ गया है? अभी मैम ने अभी बोला कि कलयुग के लिए हम लोग कभी थैंकफुल नहीं होते, हम लोग कलयुग के बारे में गंदी बात बोलते रहते हैं. बट डोंट यू थिंक इट इज सो अमेजिंग, you know, the things that we are enjoying, the technology that has, you know, given us such, you know, blissful life, almost blissful life. हाँ, तो उसके लिए हम लोग तो कभी थैंकफुल होते ही नहीं है. तो हर चीज के लिए आपको आपके पास बैंक का स्टेटमेंट आपके फोन पे आ जाता है. सो आर यू थैंकफुल फॉर दैट टेक्नोलॉजी? या आर यू थैंकफुल फॉर द मैसेजेस दैट यू गेट? वरना हम लोग को चिंता ही लगी रहती थी, पैसे आए हैं नहीं आए हैं, गए हैं नहीं गए हैं, नहीं होता था ऐसे. बट नाउ इट इज ऑन योर टिप्स बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो जो चीज आप यूज करते हैं आपको उसके लिए थैंकफुल होना है. ठीक है, एनीथिंग शी हैज गिवन अस, यू नो, प्लेंटी ऑफ थिंग्स कि आप देख लो, इवन अबाउट द पीपल यू वर्क विद. हाँ, आपके नेबर्स के बारे में, आपके स्टाफ के बारे में, आपकी कार के बारे में, पेट्रोल पंप के बारे में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग टुमारो, दैट यू आर सीइंग टुमारो, दैट यू आर यूजिंग टुमारो, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट. और आपको कैसे थैंकफुल होना है? आपको मन में थैंक यू बोलना है. किस चीज के लिए? ये दो चीज आपको बोलनी है और आपका मैनेजर लिखता जा रहा है. ठीक है, क्या? Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. तो आप देखिए, हमको क्या करना है, हमको हर चीज के लिए अपने मैनेजर को यही बोलना है. ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द गीजर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द डोर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द पॉट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द बेसिन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द कुक, मेड. माने यही आपको पूरा दिन बोलते रहना है. ठीक है, और सिर्फ ऐसे नहीं बोलना जैसे हमने बोल दिया पट 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 पट, नहीं. आपको क्या करना है, उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मिक्स करनी है. ठीक है, सिर्फ नहीं बोलना है. जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड के संग आप बोलेंगे, वो मैनेजर सब नोट कर रहा है. और ये मैनेजर एक्चुअल में कौन है? टेल मी. ये आपका ही माइंड है, राइट? आपको ही पता होगा ना कि आप कितना स्ट्रांगली ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि नहीं. यस, तो जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस होगी. एंड शी इज टेलिंग अस दैट इट कैन क्रिएट मैजिक्स इन वन डे. इतना ज्यादा भी अगर आपने ग्रैटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड किया तो एक दिन में ही आपके लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। इसका एक तो इसके पीछे साइंस है जो हमने बाद में समझ के ऐसा सी मेरा इसमें ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। जिस चीज को अपन बार बार बोल रहे होते हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप अपने ब्रेन को ट्यून कर रहे हैं कि यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू आर अ लकी पर्सन, देयर इज सो मच हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। जब आप उस चीज के लिए ऐसा फील करने लगोगे तो क्या होएगा, आपके लाइफ में मैजिक्स आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे, आपका ब्रेन ऐसे ट्यून हो जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, कोई भी चीज में आपका कैसा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वेरी नाइस होता है ना। तो क्या होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लग रहा है तो ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में अच्छे आएंगे, ठीक है। बट उसके लिए स्टार्टिंग क्या करना है, हमको फोर्सफुली ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपको याद है छोटे में हम लोग कैसे टेबल्स लर्न करते थे, 2 1 2 2 1 2 करते ही रहते थे। आज आपको कोई पूछे 2 1 2 तो ऑटोमेटिक निकल आता है ना, लाइक कोई पूछता ही नहीं, लाइक 2 1 2 ये कोई पूछेगा, ठीक है। बट आप सोचिए ये कैसे लर्न हो गया, कैसे हमारे दिमाग में ये सेट हो गया, हाँ, बार बार बोल के, ठीक है। तो कल से जो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप थैंक यू की माला कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि हर चीज अच्छी है, ठीक है। जब हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसा चेंज हो जाएगा दैट एवरीथिंग इज गुड, आवर ब्रेन विल ओनली फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। और हमको इसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है, और फीलिंग तभी आएगी जब आप बार बार उसको बोलोगे, ठीक है। आप देखिए ना, आपने अपने हस्बैंड को भी या वाइफ को भी जब आई लव यू बोला था फर्स्ट बार, तो क्या एक्चुअल में फील करके बोला था? हो सकता है आई एम सॉरी, हाँ, पहले तो आप इतना जानते ही नहीं होगे ना उसको, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव मैरिजेस, उसमें भी मूवी में दिखाते हैं ना कि शुरू में तो पहले लड़ाई होती है, वो उसको पसंद नहीं करता है, फिर वो उसको, जैसे DDLJ देख लीजिए आप, उसमें क्या था, इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, हाँ। तो हर चीज में आपको एफर्ट करना ही है, धीरे से ही फीलिंग्स आएंगी, लेकिन आएंगी डेफिनेटली, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, या इजी। If this works like magic, practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. क्या हमारे लिए तो ये एप्लीकेबल है नहीं, कल ट्यूसडे है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम से भी, आपका वर्क फ्रॉम होम है तो भी इट इज ओके, अगर आप बाहर जाके भी काम कर रहे हो, घर पे भी हो, एनीवेज आपको कल सुबह से ये प्रैक्टिस करना ही करना है, ओके। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है। सुबह उठ के आपको अपना हेल्थ नोट देखना है, आई एम श्योर आप लोग सब लोग उसको देख रहे होगे दिन में, राइट। आपको अपना मनी वाला जो नोट जो आज आपने हाथ में पकड़ के थैंक यू बोला था, कल आप उसको या तो उसके बगल में पोस्ट कर दो, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग किसने शेयर किया था ना, फ्रिज पे या कहीं पे पोस्टेड था, आई थिंक समवन शेयर्ड इन द ग्रुप, हाँ। हेल्थ नोट के बगल में ही मैजिक मनी नोट था, आप उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हो या अपने वार्डरोब पे पोस्ट कर सकते हो, एंड उसको कल से आपको जितने बार देखना है ग्रैटिट्यूड और फीलिंग के संग देखना है, ठीक है। एंड कल पूरा दिन आपका ये मैनेजर आपके संग चल रहा है, आपको सिर्फ उसको बोलते रहना है, ठीक है। एंड इट विल एक्चुअली बी लाइक दिस दैट आपके मन में और थॉट आएगा ही नहीं, इट विल बी लाइक कि आपके मन में सिर्फ थैंक यू चल रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं कि मेड ने डस्टिंग कम की है, कि वाइफ ने खाना थोड़ा सा ऊंचा नीचा बना, आपको दिखेगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज आपको पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। तो कल आपको सिर्फ इतना सही करना है, सुबह से शाम तक you have to keep on saying thank you. Yeah, yes, Sudhi, please read. Magic practice number 6 works like magic. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Yeah, तो आप देखिए, she is telling us our job today is to look for as many things as you can be grateful for, ठीक है। इस लाइन में देखिए, इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि आपको सिर्फ बाहर निकलो तो ग्रेटफुल होना है, सिर्फ घर पे रहो तो ग्रेटफुल होना है, नहीं, फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन टू बी ग्रेटफुल फॉर, ओके। तो आप देखिए, और प्लस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता ही है हम लोग किसी को जब काम पे रखते हैं तो उसको कितनी छुट्टी देते हैं, जितने घंटे का काम होता है उससे 2 मिनट एक्स्ट्रा ही काम कराते हैं,
है ना। तो अब आपके ऊपर है, आप उस मैनेजर को लंच ब्रेक दे रहे हो, टी ब्रेक दे रहे हो, कॉफी ब्रेक दे रहे हो, आई डोंट नो, क्या आप ऐसे किसी जन को इतना सारा ब्रेक्स देते हैं? नहीं देते हैं। तो अपने इस इनविजिबल मैनेजर को भी आपको पूरा दिन काम पे लगा के रखना है। आपने आंख खोली तब से उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देना है। ओके, यस। Third, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you Surbhi for reading so nicely and emphatically, बहुत अच्छे से आपने रीडिंग किया, thank you so much for that. अच्छा, अब आप देखिए, थैंक यू, ये वाली जो प्रैक्टिस है, इट इज वर्किंग ऑन आवर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, जितना ज्यादा वर्बल रिपीटेशन होता है उतना ज्यादा हमारे लाइफ में लाइक हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंज होता है। तो अभी तक अगर आप अपने जॉब, बिजनेस, घर के काम के लिए, जिसके लिए भी अगर आप नेगेटिव सोचते थे, बोलते तो थे ही, हम लोग तो सोचते भी होंगे, है ना। तो अगर हम लोग ये वाला जो प्रैक्टिस, आज वाला जो प्रैक्टिस है, ये करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आप बताइए, अभी तक ये जो हम लोगों ने 5 दिन की प्रैक्टिस की है, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपने की अच्छे से तो लग रहा है आपको, या यू फील? अच्छा, एक और चीज, ये प्रैक्टिस तो मैजिक लाने के लिए, सेशन में आके अगर आपको लगता है बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है, नहीं, उसके लिए बहुत सारे सेशंस, क्लासेस, उपदेश, प्रवचन सब कुछ होते रहते हैं, स्टोरी बुक होती है, कपिल शर्मा देख सकते हो आप, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है उससे। ये सेशंस, ये बुक इसलिए है कि आपकी ड्रीम्स पूरी हो। ठीक है, तो सिर्फ आके चले जाना, सुबह ब्लेसिंग्स डन ऐसे टाइम पास के लिए लिख देना, नहीं, यू हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपसे ऐसा होगा, तो ही आप इस सेशन में आओ, तो ये तभी इस सेशन में आइए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप देखिए ना, कल की प्रैक्टिस कितनी इजी, आपको कुछ लिखना है, कोई फोटो ढूंढनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग को, जो अभी तक पता नहीं क्या क्या देखता रहता होगा, सड़क पे जा रही है तो उसकी ड्रेस देख रहा होगा कि कैसी ड्रेस पहनी है, कुछ मैचिंग नहीं है उसकी, ठीक है, गाड़ी का कलर देखो, वी डू ऑल दिस। उसके बजाय आपको सिर्फ थैंक यू करना है। ठीक है, इसका फोन आया, 10 गॉसिप कर ली, उसको क्रिप कर लिया, उसकी क्रिटिसिज्म कर दी, नहीं करना है। मूवी देख रहे हैं, बेल बॉटम तो इतनी बकवास मूवी, आई हैव नॉट सीन इट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, कई जन बोल रहे होंगे बकवास है, कई जन बोल रहे होंगे अच्छी होगी, तो वी आर टॉकिंग थिंग्स व्हिच हैव नो इफेक्ट इन आवर लाइफ, उसके बारे में भी अपन कमेंट करते रहते हैं, उसके बारे में भी अपन बोल के हमारे लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ठीक है, लाइक ये जब आप करोगे ना, तो आप देखना, यू विल बी सो ऑक्यूपाइड, योर माइंड विल बी सो ऑक्यूपाइड, योर मंकी माइंड विल बी सो ऑक्यूपाइड इन फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, कि उसके पास दूसरे कुछ चीज के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। टेल मी, those who have done the session, आपको ऐसा लगा? मेरे को तो ऐसे ही लगता है, when I'm doing the practices, the day, उस दिन तो कुछ और में दिमाग जाता ही नहीं है, कोई किसी और में नहीं जाता, एंड आप देखना एकदम डिफरेंट लेवल का आपका कल एक फीलिंग आएगी। ओके, so any question? No? ओके, सो विल डू द ग्रैटिट्यूड, एंड तब तक अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए या आज के प्रैक्टिस के बारे में कुछ बात करनी हो तो आप बोलिएगा। ठीक है, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड पे ग्रैटिट्यूड टू द सुप्रीम पावर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू द ग्रेट ऑलमाइटी एंड द वंडरफुल 5 elements of nature. Thank you for filling my life with abundance. Thank you for giving me this creativity. Thank you, my loved ones. Thank you for their good health and my good health. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, everyone. So do you have any question? Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, one more thing, आज का जो मनी वाला प्रैक्टिस था आपका, ठीक है, वो आपको जितना ज्यादा करने का मौका मिले, कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, चीजें याद कर करके आप जितना ज्यादा थैंकफुल होगे उन चीजों के लिए जो चीजें आपके ऊपर स्पेंड हुई हैं, ठीक है, आपके लाइफ में पैसे आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। जब आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, क्या करना है हमको?
आज कितने लोगों ने हाथ में पैसे लिए और उनको ब्लेस किया, उनको एनर्जाइज किया? I did. वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसा लगा? It was very good, you know. In fact, today there's a gardener whom I call usually once in a month. तो आज छुट्टी थी, so I called him. थोड़ा सा ज्यादा पैसे आज my husband paid to him. So I was about to say, but then I said no, gratitude, good that it is good for him. It will be happy, you know. It will be he'll use it for its family and all. So my husband also surprised, what are you doing? I told him this concept. I'm sure as of now he would not be following, which is completely fine. First, I need to do it. But then, you know, tomorrow is my husband's birthday. So I was buying few stuffs. So I was paying through this Google Pay and all. So every time I did this after this last click, and it really felt so good, you know. Even, you know, earlier I used to crib a lot. अरे यार इतने पैसे लग गए, इतना में थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है. But then today somehow I was like, it's okay. जितना भी जा रहा है, it's okay. I mean, but it feels so good, you know. Yes. And all these days, just I always felt that, you know, I really have to work hard to achieve anything and beat anything, you know, whatever little or more I have achieved till date. I really have worked hard for it and I'm proud of it. And thanks to my parents for that thing. But now after this session, I feel that I can be lucky also. Yes. I just do those stuff. So I'm looking forward to share some story where I feel lucky. Definitely. And what you should do is you should never say you work hard. Okay? एकदम मत बोलिए। क्यों? हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, इजीली हमारे पास पैसे आ रहे हैं। Why should we say that we are working hard? खूब मेहनत करो। क्यों बोलेंगे हम अपने बच्चे को भैया खूब मेहनत करो? नॉर्मल मेहनत करो, बहुत सारे पैसे आएंगे, यही ना? क्यों बोले मेहनत के बिना पैसे नहीं मिलते? क्यों? आपने नहीं देखा? ठीक है, आप बोलोगे नहीं वो भी तो मेहनत है। नहीं, कई जन थोड़ा सा एफर्ट करते हैं और उनको पास पैसे आ जाते हैं, वो ग्रेटिट्यूड ज्यादा करते होंगे। तो वी शुड ऑलवेज से दैट वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस जॉब, वी आर ब्लेस्ड, यू नो, फॉर अचीविंग व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड। ठीक है, मेरे को भी बिफोर दिस सेशन आई यूज्ड टू फील, यू नो, दैट मेरे काम के लिए नो मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। पहले कुछ ना कुछ सम टाइम, यू नो, सम डेज आर देयर कि कुछ दिमाग में घुस जाता है एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। Thankfully, just before this session, I started feeling blessed. That wow, I'm so blessed that मैंने खुद ही सब कुछ किया है। ठीक है, God has given me this opportunity that my parents has, you know, taught me things. They have sent me to places that I could do everything on my own. उसके पहले हम ही को मन में आता रहता था, किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। पहले ऐसा उल्टा चलता था, बट जब से आया है एंड सिंस देन, और इस मैजिक सेशन के बाद तो मैंने मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स अमेजिंग मेरे को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, मैंने ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, इनफैक्ट इस सेशन, अच्छा नहीं सॉरी, फर्स्ट योर शेयरिंग्स, मेरी शेयरिंग्स तो चलती रहती हैं। या आप लोग बताइए। यस सोनिया जी, आपने भी अपना हैंड रेज किया है, यू वांट टू शेयर? या आई हैड टू क्या बोलूं उनको, अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे है, मैं शेयर नहीं करना चाहती, बट आई फील लाइक कि ये शायद पॉसिबल नहीं था अगर मैं इन सेशंस में नहीं होती। तो कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी और होपफुल ही नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कुछ होगा। मेरे ब्रदर इन लॉ की एंगेजमेंट हुई है, 1 साल हो गया है, और उससे पहले उनके 2 साल डेटिंग के चले, तो 3 साल से दे वर ट्राइंग टू गेट मैरिड, बट हो नहीं पा रहा था वो। आई थिंक जुलाई, मिड ऑफ जुलाई उन लोगों की डेट फाइनल हुई, वो भी 29th ऑफ नवंबर। तो 29th of November, it's difficult for us to visit India, क्योंकि मेरी डॉटर का इस बार बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो हमने बोला कि 29 नवंबर, हमने बोला घर पे मम्मी पापा को बोला कि थोड़ा तो कंसिडर करो, रानिया मतलब एक की भतीजी है, चाचू की शादी है, और अगर हम लोग ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा। बट पहला जो रिप्लाई आया वो यही था कि इतने टाइम के बाद शादी हो रही है, वो लड़की वालों के साथ जाना और हम लोग नहीं कर सकते अभी उन्होंने जो डेट दी है हम लोग उसी पे गो एट कहेंगे, और यही कोई डेट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने मान के चल लिया कि वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस वेडिंग बिकॉज 10th का बोर्ड तो नहीं हिला सकते। तो पूरा अगस्त we were like, हमने इस बारे में बात करनी बंद कर दी, ये सोच करके कि नहीं होने वाला है कुछ, वो डेट 29 नवंबर ही है और हम शायद नहीं जाएंगे कल। और ये मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में भी लिखा था कि लिखा कुछ और मैनर में था, बट वो हुआ
कल कॉल आया सामने से चला के पापा का, और वो बोल रहे हैं डेट उन लोगों ने शिफ्ट करी है 11th दिसंबर के लिए, जस्ट बिकॉज आनिया के एग्जाम्स हैं। वेरी नाइस। वो और इट वाज, मैं बता रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो कंसीडर नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जा रहा था कि आना जरूरी है नहीं जरूरी है, वो वाकई में था। वो प्रायोरिटी शादी जल्दी हो ये थी ना, कि शादी में सब आए, ये प्रायोरिटी थी। बट ये सच में आउट ऑफ ब्लू हुआ है कंप्लीटली। इट वाज आई वाज रियली हैप्पी। मैंने नीलिमा जी को भी बताया था कि शायद ये मेरा फर्स्ट मैजिक हुआ है, बट बहुत इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि मैंने जो ड्रीम लिखा है उसमें कुछ और भी थे, तो वो होते तो मैं बिल्कुल होंगे। अब आपको क्या करना है सोनिया जी, अब आपको किसको किसको ग्रेटिट्यूड करना है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। हाँ, वरना मैंने आपको बताया नहीं था। जब आपके लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस इज अ मैजिक, आपकी डेट पोस्टपोन नहीं, अभी आप गए नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफ में ये वाला एक स्टेप हुआ है कि यस यू वांट टू गो टू इंडिया, नॉट ऑन 29th, ऑन सम अदर डेट, कम टू इंडिया, सॉरी, और आपके लाइफ में ये फर्स्ट आया है, तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू एक्चुअली कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू एक्चुअली बी ग्रेटफुल, शो योर ग्रैटिट्यूड। हाँ, आपने कुछ मांगा, आपको मिल गया, तो ग्रैटिट्यूड कब करना होता है, जब आपको कुछ मिल गया, राइट, आपको कुछ मिल रहा है ना, तब आपको ग्रैटिट्यूड करना होता है ना। तो अब आपको किसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, आपको अपने मम्मी पापा के लिए जिन्होंने डेट शिफ्ट की, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, उसकी फियांसी के लिए, आपको सबको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड। आप लिख के, बोल के, सोच के, बस आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैजिक हुआ, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, वरना क्या होता है, इट्स लाइक अभी हमारे लाइफ में इन द सेंस जो हमारे हम लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, हाँ, आप सोचो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ये सबसे इजी एग्जांपल सबको समझ में आता है, इसीलिए हम ये एग्जांपल देते हैं। वो छोटा बच्चा है, उसने अभी अभी ड्राइंग करना सीखा है, कैसी ड्राइंग करेगा वो, उसको आप अपने, हाँ, स्क्रिबलिंग करेगा, और वो आपके पास लेके आया है कि मम्मा सी आई मेड अ, जो भी उसने बोला, कुछ तो भी बताया कि मम्मा आई मेड दिस सर्कल, एंड वो सर्कल तो कहीं से नहीं लग रहा है। आपका रिएक्शन क्या होता है, क्या आपके पास एक तो ड्राइंग लेके आया, आप क्या रिएक्शन करते हो, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। वो क्या होता है उससे, वो एनकरेज होता है और सर्कल बनाता है, फिर एक दिन परफेक्ट सर्कल क्या और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना के लेके आता है। तो अब हमको क्या करना है, जो आपको लग रहा है ना बहुत इनिशियल है, पहले तो ये बोलना ही नहीं, क्या हो गया, आप बोलोगे इसका मतलब क्या हो, सर्कल तो ये लग ही रहा है, थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सा वैसे करना चाहिए, राइट। तो आपको ये नहीं करना, आपको बोला वाओ दिस इज मैजिकल, इतना अच्छा हुआ है ये, नाउ लेट्स गेट एक्साइटेड, यू हैव टू शो योर एक्साइटमेंट कि अब ये ड्रेस सोचना है, वो ये पहनेगी, मैं ये पहनूंगी, मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, तो इतने सारे गिफ्ट लेके जाऊंगी सबके लिए, आपको अपनी लाइफ में ऐसे लेके आना है, ठीक है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू सोनिया जी, आप सबको देखना है कि आपके लाइफ में, आपको लगता है ना छोटा सा मैजिक, वो छोटा सा मैजिक नहीं होता है, वो छोटा बेबी अपने हिसाब से सर्कल क्या मे बी एक लाइन ही बना के लेके आया आपके पास, ठीक है। तो उस हर चीज को आपको एक्नॉलेज करना है, बिकॉज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड इफ नॉट एक्नॉलेजमेंट। एंड जितना ज्यादा आप एक्नॉलेजमेंट करोगे, किसको, आपके लाइफ में जो मैजिक्स अभी आने शुरू हुए हैं, जितना ज्यादा उसको एक्नॉलेजमेंट करोगे, उतना ज्यादा वो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा सर्कल, राउंड, स्ट्रेट, जो भी लेके आएगा, लेके आता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एवर हैपेंस, अगर आप ये बात किसी और के संग शेयर करोगे तो हो सकता है समझ में नहीं आए। अगर आपने मन में सोचा इतना छोटा मैजिक है, क्या शेयर करें, एकदम ही मत करिएगा ऐसा, आपको शेयर करना ही करना है, किसी ना किसी के संग आपको शेयर करना ही है। जब आप देखिए ना, क्लास में एक बच्चा सेकेंड थर्ड जो भी आता है, आप क्या अपने रिलेटिव्स को, दूसरों को बताते नहीं हो, अगर उसने जैसे भी लेके आए मार्क्स, आप दूसरों को बताते हो ना, वाओ वो पास हो गया, मिठाई बांटते हो, ये करते हो, आप करते हो ना। तो वैसे ही छोटा सा भी मैजिक हो, कुछ भी हो, आपको शेयर करना है, उससे आपके लाइफ में जो मैजिक्स होने वाले हैं वो और ज्यादा आएंगे, ठीक है। कुछ भी हो कि आपने सोचा कॉफी पीनी है एंड मम्मा बोली चलो कॉफी पीते हैं, मम्मा इज अ टी पर्सन, अगर उन्होंने बोल दिया कॉफी पीना और आपके मन में, यू हैवंट टोल्ड हर, जस्ट केम टू योर माइंड कि आज कॉफी पीने का मन हो रहा है, ऐसा हुआ है आपके संग? आज नहीं, बट डेफिनेटली लाइफ में पहले कभी हुआ ही है, हुआ होगा ऐसा ना, कि आपने सोचा, किसी का फोन आ गया, आपका मन है बाहर खाने का, किसी और ने भी बोल दिया कि चलो आज बाहर चलते हैं, इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके लाइफ में नहीं हुआ ऐसा? एवरीवन इज सो क्वाइट, हुआ ही होगा। कितना ध्यान को हम देता है उस टाइम पे, अब देना शुरू है ना, यस। तो आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है,
और बिल्कुल ऐसे करना है कि वाओ कितने मजे की बात है। अच्छा, एक और चीज, जब आज हम लोग वर्क के बारे में बात कर रहे हैं और कल हमने मनी के बारे में बात की थी, तो आप देखिए आपके वर्क के हिसाब से भी अगर आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी आई है, आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं, भले ही कम दिए हैं, भले ही आधे दिए हैं, आपको उसके लिए थैंकफुल होना ही होना है, ठीक है। आपको बहुत एक्साइटमेंट शो करना है, ठीक वैसे ही जैसे वो छोटा बच्चा स्क्रिबल करके लेके आता है, जितना पैसा जहां से भी आ रहा है आपके पास, आपको एक्साइटमेंट शो करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी आए मतलब यू हैव टू बी लाइक वाओ इतने पैसे आ गए, इतनी मस्ती की बात है, अभी और आने वाले, यू हैव टू शो दैट एक्साइटमेंट। तो जितना ज्यादा आप ये एक्साइटमेंट शो करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मनी आएगा। जितना ज्यादा आप एक्साइटमेंट कि हाँ हस्बैंड ने आज मेरे को एक इतना अच्छा जोक भेजा, रोमांटिक नहीं, जोक तो रोमांटिक नहीं होता है, रोमांटिक मैसेज भेजा, शेयर इट रादर देन ऑलवेज सेइंग वो तो मेरा बर्थडे ही भूल जाता है हमेशा, कभी मेरे को घुमाने ही नहीं जाता। नहीं, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, एक्साइटमेंट के संग शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में उस एरिया में, हर एरिया में मैजिक्स आएंगे। ओके, सो यस, एनीवन एल्स? एक चीज और थी, एक चीज और हुई, हाँ, लाइक कल आज हमने मनी वाला ग्रेटिट्यूड किया, राइट। स्टार्टिंग में आई वोक अप लिटिल अर्ली ओनली एंड मेरी ब्लेसिंग्स बहुत पहले ही हो चुकी। मुझे किसी को पेमेंट करनी थी इंडिया में, और आई वाज वंडरिंग, आई हैड मनी बट आई वाज लाइक कि ये तो अभी मुझे चाहिए होंगे, ये फ्री कैश मुझे चाहिए, मुझे ये, लेकिन ये पेमेंट करनी भी जरूरी है, तो कैसे करूं। बट मैंने बहुत साल पहले किसी को पैसे दिए थे और मैं वो भूल ही गई थी ऑलमोस्ट। मुझे मालूम है मैंने दिए, लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी वो यूज करूंगी, क्या करूंगी नहीं करूंगी। बट और याद भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट 1 साल से तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास मैंने किसी को पैसे भी दे रखे। बट आज मुझे सडनली क्लिक किया, अरे मेरे पास तो वहां पे फ्री कैश रखा हुआ है, मैं वो यूज कर सकती हूँ। आई वाज लाइक कहाँ से ये दिमाग में आया। मैंने इमीडिएटली उस पर्सन को मैसेज किया एंड ही ऑल्सो अग्रीड। मुझे लग रहा था पता नहीं आप अचानक से किसी के सर पे बम फोड़ो तो वो एग्री करेगा कि नहीं करेगा, सो गुड अमाउंट, बट ही अग्रीड ऑन इमीडिएटली। सो आई वाज लाइक चलो अच्छा है यार, गुड। और आपने बोला था ना, आपने बोला था कि पैसे आ रहे हो तो मना नहीं करना चाहिए, तो मैं काफी सालों से ये फॉलो कर रही थी। मैं पैसे नहीं लेती हूँ किसी से भी, अपने मम्मी पापा से भी कैश नहीं लेती हूँ, कोई भी देता है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम जैनी है तो एक थोड़ा सा दिमाग में वो भी है कि नहीं लेनी चाहिए ये सब चीजें। तो लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो चेंज करना चाहिए, मुझे जो दे रहा है ले लो। बिल्कुल, जो दे रहा है आप उसको अच्छे से, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम हाँ खुशी खुशी, बट जो दे रहा है हैप्पीली टेक इट। ओके, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, हैप्पीली टेक इट। वट एवर यू आर गिविंग, ओके, यू विल रिसीव। इफ यू आर गिविंग अ नो, आपके लाइफ में आप खुद लक्ष्मी को मना कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे आपके मन में खुद ही आएंगी, ठीक है। वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड, आप हर चीज में उसको ऑब्जर्व करने लगोगे। ओके, thank you for your sharing. Thank you, Shweta ji. Yeah, Sangeeta ji, you wanted to share? Are you there? Yes. Yeah. Yes. कल ना मनी का हुआ, and when I was attending the session, as I've told you, we've got a store in the house itself, and Sundays को ना usually we've added a few, Sundays को sale काफी high होता है, तो कल थोड़ा सा लो चल रहा था। And I was session के पहले मैंने पूछा कि कितने orders गए and stuff, and it was quite low as compared to what is on a Sunday. I was like ऐसे कैसे? I attended the session बहुत अच्छे से, बहुत सारा gratitude, और जैसे ही I went down and bombarding That's awesome. एकदम it crossed that level again, and I was like, see, the universe is giving, say thank you, and everybody was like yes. So it's really hard, but instant ऐसे, मतलब मैं session खत्म करके पहुंची and bombarding. Wow, excellent, wonderful. See, thank you for your sharing, संगीता जी। देखिए ये बहुत, ये वाला जो है ना, क्या होता है, आप सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड हम लोग अच्छे मेमोरीज में फील कर सकते हैं। वो जो फीलिंग स्ट्रांग वाली होती है ना, उसी में आती है। इसीलिए हमने कहा कि जितना ज्यादा आप पास्ट की मिली हुई चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, ठीक है, जो हमको अच्छी लगी ही थी,
ठीक है, कोई आप फेवरेट रेस्टोरेंट गए थे, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, आपको किसी ने हग किया था, कोई किसी के संग आपकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, उन सबको अभी आपको मन में ही एक्नॉलेज करना है। ठीक है, पेरेंट्स को तो हमको लगता है आपको बिल्कुल फोन करके थैंक यू बोलना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने अभी नहीं किया है तो यू शुड बी कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम यू नो दैट यस आई लव यू सो मच। ठीक है, आपको ऐसा लाइक फीलिंग आई होगी कि नहीं आई होगी, आई डोंट नो, आपको आया है, यू शुड कॉल देम एंड लेट देम नो। ठीक है, तो मेरे को तो लगा था आप लोग एक आध जन शायद you know you would call your parents and hug them and or you know whatever, call them and tell them that yes I miss you, and if you are you know and you are so blessed if you have them around, you should let them know. okay, तो आप बिल्कुल ये करो, जितना ज्यादा आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके लाइफ में उतना ज्यादा मैजिक होएगा। एक है कि ना कि आप तो कर ही रहे हो ग्रैटिट्यूड, आप तो कर ही रहे हो एक्नॉलेज, बट उनके ब्लेसिंग्स जो भी दिल से आएंगे ना, उनसे ज्यादा आपको कोई और ब्लेसिंग नहीं दे सकता, कोई नहीं और दे सकता। तो आप वो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो, वील रीड दैट आल्सो इन द कमिंग चैप्टर्स। ठीक है, कि ये ब्लेसिंग्स जो बड़ों से मिलती है उसका एक अलग लेवल होता है। आजकल हम लोग पैर कैसे छूते हैं, छूता है कोई किसी के पैर? प्रणाम नमस्ते करने में ही तो हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, या बच्चे तो आजकल पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, या तो आप ये सब चीज देखिए जो हमारे कल्चर में था, ऑल दिस इज अमेजिंग, वो आप करिए और सिखाइए भी अपने बच्चों को। ठीक है, सो anything else someone wants to share or any question? Priya Vaijayanti here. Hi Priya ma'am. Yeah, Just I wanted to ask you, when you take out the money from the monthly expenditure, should we do something extra or only gratitude is enough? They say you should not spend it on the same day, so I'm just confused for that. See, regarding that I don't know about you know Yeah. if you should be spending it or taking it out the same day or not, ये मेरे को नहीं पता। ये अगर आपका बिलीफ है, okay, then you should be thinking Keep it for some time, yes. that is your belief, वो नहीं पता मेरे को। Yeah. हाँ, but if you are giving it to someone, taking out the money, आप उसको bless करके ही देना है। अगर आपने अपनी मेड को दिया, सैलरी दी उसको, ठीक है, Yeah. अभी आप दोगे मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर ही, या अभी दे रहे होगे जो भी whatever, हाँ, तो आप जब उसको पैसे दे रहे हैं आप उसको ऐसे ब्लेस करके दीजिए कि वो उसके अच्छे काम में ही आए। ठीक है, यही तो होता है ना कि आपने किसी को पैसे दिए, उसने उसको कहाँ यूज किया। ब्लेसिंग मतलब क्या हुआ कि वो दवाई में यूज हो रही है, कि आप वो किसी के अच्छे चीज के लिए यूज हो रही है, कि कोई सेलिब्रेशन के लिए यूज हो रही है। तो व्हेन यू आर ब्लेसिंग इट एंड गिविंग इट, इट मींस दैट इट इज ब्लेस्ड मनी, वो अच्छे काम में यूज होएगा। सो इफ यू आर गिविंग इट लाइक दैट, इट विल गिव अबंडेंस इन योर लाइफ एज वेल, बिकॉज़ व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू आर रिसीविंग। ये अगर हम लोग इतनी सी बात एक याद रखेंगे तो हमारे लाइफ के हमारे आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। लाइक इफ यू आर गिविंग दैट मनी टू समवन, हाँ, और आप उसको ब्लेस करके दे रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Yes, thank you. Yes. Just a last quick query. Yes. So that note that you said to put it, to stick it over the fridge or to the wardrobe. So is it okay if we put the inside of the wardrobe, not on a display side, but the inside of the wardrobe, or it's important that it has to be on the front side, because I keep opening the wardrobe and all. So if you keep opening the wardrobe and then you will keep saying you're reading it and feel gratitude, then it's fine. अगर आप maybe you know if you go to office, आपने wardrobe में चिपका दिया, like I keep it in my wallet. Okay, I go to office, I keep it in my wallet. कि हम ऑफिस जाते हैं दिन में 2-3 बार तो वॉलेट तो खुलता ही है, so I see the note and I read it and then I put it back if I'm not in a rush. So at least any time I can read it. अब wardrobe में रहेगा तो I get ready once in the morning. दिन में अगर आप कई बार उसको खोलते हो wardrobe को, तो वहां रख लो। अभी work from home में तो खुल ही रहा है, और I can keep in my laptop bag. Yes, you can keep in your laptop bag anywhere where you will see it often. It's like a constant reminder. ठीक है, so it is for that. Thank you. Okay, thank you. Yes. Anyone else? Okay, then let's call it a night and happy Janmashtami to everyone. Yes. Thank you so much. Same to you. Thank you. Magic rock at night. Okay. जितना भी लेट से जन्माष्टमी में आप सो, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके ही सोना है। ठीक है। And what you have to do is you have to start making your manager work as soon as you get up. ठीक है। जितना ज्यादा थैंक यू आप बोलोगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। ओके। Thank you. Thank you so much. Good night.